It's late in the evening, the road is long, and we are traveling to meet a man who has lived through an ordeal no citizen should ever face. इधर भी लाइट जल रहा है लाल लाइट, इधर भी लाल लाइट जल रहा है, तो मेरे को बोला इधर भी नहीं जाना है, उधर भी नहीं जाना है, एकदम सीधा रास्ता दिखा रहा हूँ, सीधा रास्ता पकड़ ले, नहीं तो इधर जाएगा तो गोली खाएगा, इधर जाएगा तो गोली खाएगा। कौन बोला ये? बेसिक। Meet Sheikh Amir, a migrant laborer from Malda, West Bengal, an Indian by birth, by home, by every document in his pocket. But that wasn't enough. पट्टा समझ आ रहा है ना? पट्टा लेके मेरे को ऐसे पट्टा लेके मार रहा है, तू कहाँ का है सही सही बता दे भाई, नहीं तेरी इधर हाल बिगाड़ दूंगा मैं। Close to 3 months back, one day, Rajasthan police picked him up, accused him of being a Bangladeshi. No trial, no proof, just suspicion. Because he's a Bengali and a Muslim, suspicion spoke louder than truth. बांग्लादेश मेरे को भेजा है, ज़बरदस्ती भेजा है। राजस्थान पुलिस वाले मेरे को बेसिप का हाथ दिया था, बेसिप हाथ के देने के बाद मेरे को बांग्लादेश ज़बरदस्ती मार के भेजा। नहीं, कोर्ट में नहीं लेके गया, बिना कोर्ट से मेरे जेल दे दिया। कोर्ट में मेरे को नहीं उठाया, मेरे को कुछ भी नहीं उठाया, मेरे को ऐसे जेल में डाल दिया बांग्लादेशी बोल के, और उस जेल में मैं अकेले हूँ। For 2 months, he was kept in detention, then handed over to the BSF. And what followed next is unthinkable. The force that guards our borders allegedly pushed him across the border into Bangladesh about 25 days back. Suddenly, an Indian was no more Indian. He wasn't a Bangladeshi either, even after being pushed into that land. কেমন আছেন আপনি? হ্যাঁ হ্যাঁ বলুক না। হ্যাঁ একটু যাবো আমরা, দেখি একটু অল্প কথা বলে আপনার সাথে, ঠিক আছে? Amir's family had no idea where he was. He is GM Sheikh, Amir's father. He had received a random phone call from Rajasthan police, that too from Amir's mobile phone. আমার ছেলেকে যখন রাজস্থান পুলিশ ধরেছিল, তো আমার ছেলের মোবাইল থেকে সেই পুলিশটা ফোন করে, সেই রাজস্থানের পুলিশটা ফোন করার পরে আমাকে বলে এটা কি হয়, আমি বললাম আমার ছেলে। তো বলছে যে কি আপনার ছেলে ক ক্লাস পড়েছে, আপনাদের ওখানকার স্কুল আমাকে ভিডিও কলে যেন দেখানো হোক। তাকে আমরা ভিডিও কল করে দেখিয়েছি স্কুল। তারপরে থেকে আমার ছেলের মোবাইল সুইচ অফ করে দেব, সুইচ অফ করে দেওয়ার পরে আমার ছেলের সঙ্গে আর কথা হয় না, কোনো যোগাযোগ হয় না। That was the first and the last call where someone spoke about Amir. His mobile was later switched off and Amir disappeared from the circuit. Days after his pushback, this video surfaced. While to his family he was missing, Amir somewhere in Bangladesh, pleading for someone to bring him home. আমার বাড়ি জালালপুর, ডিস্ট্রিক্ট হচ্ছে মালদা, কালিয়াচক হচ্ছে থানা। তোমার বাবার নাম কি? জেমস শেখ। জেমস শেখ। মার নাম? মায়ের নাম রেনু বিবি। কেউ ভাবন তোরা? আমরা 2 ভাই 1 বোন। এখন তুমি কোথায় আছো? এখন এখন আমি বাংলাদেশে আছি। তুমি বাংলাদেশে আছো? তোমার বাংলাদেশে কেউ আছে? কেউ নাই, বিলকুল কেউ নাই। কেউ নাই। ঠিক আছে। His father ran from office to office, clutching proof of his son's citizenship, begging for justice. The Bengal government that was so far never kept in loop before deportation had now stepped in. The state police took it up with the BSF. The father moved to Calcutta High Court. But in court, BSF claimed Amir had randomly gone to Bangladesh, a statement that many say insults truth and mocks the very idea of citizenship. Saying that this person inadvertently he crossed the border and went to Bangladesh, and then again he was crossing from Bangladesh to India and he was apprehended by the BSF and he was handed over to the local police station. State police have strongly rebutted the claim, laid down evidences before the court. But as the hearing was on in the court,
Interestingly, the same BSF that had allegedly pushed him out on Wednesday let him in, as if he was randomly thrown out and randomly accepted. 3 months later, after torture, humiliation, and survival in a land that was never his, Amir is finally back. Not because Rajasthan Police or BSF protected him, but because his father refused to stop fighting. This is the moment when a family reunited after close to 3 months. শরীর ঠিক লাগছে এখন? শরীরটা একটু ইয়ে আছে, দুর্বল আছে, পা নিয়ে থাকা যায় না। কেন, পায়ে কি হয়েছিল? পায়ে মেরেছে আমাকে। আমি তোমার 2 মাস আগে আমি কাজে গিয়েছিলাম রাজস্থান। রাজস্থান কাজে যাওয়ার পর আমি ওখানে কাজে বেলপাড়া, রাজস্থান বেলপাড়া, তারপরে আমাকে প্রতাপনগরে পুলিশ, আমি ওখানে যাচ্ছিলাম কাজে টেম্পুতে, আমাকে টেম্পুতে ধরে ফেললো। কেন ধরলো? তো বাংলাদেশি বলে ধরছে, আবার সবাইকে শুনছি। তো আপনি কি টেম্পুতে কোনো বাংলায় কথা বলছিলেন কারোর সাথে? আমরা তো বাঙালি, আমরা কি বাঙালি কথা বলতে পারি? তো আমাদের ধরো 5টা ঠিকাদার ছিল, 5টা ঠিকাদারের ভিতরে 70 জনকে ধরেছিল। 70 জনের ভিতরে আমাকে সন্দেহ বেশি করেছিল। তো আমাকে আগে প্রশ্ন করেছে, আমার কাছে ডকুমেন্টস দেখেছে, ওদের কাছে ডকুমেন্টস কিছু দেখেনি, আমার কাছে ডকুমেন্টস দেখেছে। ওখানে আমাকে ডকুমেন্টস আমার দাদা থেকে নিয়ে শুরু করে, আমার বাপ দাদা থেকে নিয়ে শুরু করে, আমার ডকুমেন্টস শুরু করে সব কিছু দেখিয়েছি, তবেই মানেনি। আমাকে অনেক মেরেছে भी। किसने मारा आपको? मेरे को मारा वो पुलिस, प्रताप नगर वाला पुलिस मारा है मेरे को। मारने के बाद 2 दिन मेरे को थाना पे रखा, रखने के बाद मेरे को जेल में दे दिया। पुलिस ने आपको मारा? कहाँ पे मारा? इधर मेरा एक पैर में 3 आदमी चढ़ा था, 3 आदमी चढ़ के इधर पट्टा लेके मारा है मेरा। आपके पैर पे 3 आदमी चढ़ गए? हाँ, और चढ़ के पट्टा लेके मारा है मेरे को। पट्टा समझ आ रहा है ना? पट्टा लेके मेरे को ऐसे पट्टा लेके मार रहा है, तू कहाँ का है सही सही बता दे भाई, नहीं तेरी इधर हाल बिगाड़ दूंगा मैं, कोई नहीं बचा सकता। मैं बोलता हूँ सर मैं है ही नहीं हूँ बांग्लादेश का, मैं मेरे को जो भी कर लो इधर ख़त्म कर दोगे तब भी कुछ नहीं बोल सकता हूँ बांग्लादेश के बारे में। मैं इंडिया का हूँ, मैं इंडिया का बोल सकता हूँ। मैं बांग्लादेश का है ही नहीं तो क्या बताऊँ मैं, बताऊँ? वो ज़बरदस्ती बोल रहा है नहीं बांग्लादेशी है तू, जब देख रहा है नहीं इसका नाश ख़त्म जा रहेगा, तब उस टाइम छोड़ दिया मारना। कब पकड़ा था आपको? मेरे को 2.5 महीना होने जा रहा है। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद मेरे को जेल से 2 महीना जेल खाटा मैं। जेल खाटने के बाद मैं उधर से मेरे को लेकर आया, उधर से पुलिस वाला लेकर आके मेरे को कलकत्ता से यहाँ से फिर बेसिफ का हाथ दिया, बेसिफ का हाथ के दिए, बेसिफ अब कुछ बैक कर दिया मेरे को। कौन सा बॉर्डर में था ये? बेनाफुल बॉर्डर। बेनापुल बॉर्डर में? हाँ, अच्छा। बेनाफुल बॉर्डर से मेरे को कुछ बैक कर दिया। तो पुशबैक किया यानी आपको बांग्लादेश भेजा? हाँ, बांग्लादेश भेज दिया। तो बीएसएफ के पास आपको जब लेके गया तो बीएसएफ का आपने बोला नहीं कि मैं इंडियन हूँ? बोला हूँ, वो भी मेरे को मारा है बहुत। BSF भी मारा? हाँ, बोल रहा है ये पुलिस वाला सब डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, ये सब गलत बात है, गलत दिखा रहा है सब। तो मैं बोला सर देखो गलत क्या है, मैं वहाँ का है हूँ, तो वो ज़बरदस्ती किया है, तो बोल रहा है जो सही सही से बता दे नहीं तो तेरे को इधर मार कर डाल दूँगा। तो मैं बोल रहा हूँ सर वो बोलो इतना जो भी बोलना है। तो मैं बोला उसने मेरे को बेसिम ने मेरे को बोला मैं जो बोलूँगा बांग्लादेश के बारे में वो तेरे को बोलना पड़ेगा। लास्ट टाइम उस टाइम में मैं वो सब बारे में बोला, बोलने के बाद मेरे को रात 1 बजे मेरे को कुछ बैक कर दिया। तो पुलिस के पास जब थे आप राजस्थान में तब कोई कागज़ पे आपसे दस्तखत लिया, कोई सिग्नेचर लिया आपसे? हाँ लिया, फिंगरप्रिंट लिया मेरा। अच्छा, और कागज़ पे स्टैम्प लिया आपका? हाँ स्टैम्प लिया। अच्छा, और उसमें क्या लिखा था, आपने कुछ देखा था? मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर। आपसे कोई वीडियो रिकॉर्ड में स्टेटमेंट लिया था आपसे कि? नहीं, वीडियो कुछ नहीं लिया था। अच्छा, खाली हाथ का फिंगरप्रिंट लिया था और वही सब किया।
जब आपको राजस्थान के पुलिस कोर्ट में लेके गया तो आप नहीं कोर्ट में नहीं लेके गया, तो बिना कोर्ट में जेल हाँ। कैसे हो सकता है? बिना कोर्ट से मेरे जेल दे दिया। आपको पुलिस स्टेशन से कोई कोर्ट में नहीं लेके नहीं गया? लेके गया वो, कोई जज के सामने आपको नहीं। पेश नहीं किया? नहीं कुछ नहीं किया वो। ऐसा तो हो नहीं सकता है। वही नियम- ना बात बोल रहे हैं सर, वही ना बात बोल रहे हैं हम। कोर्ट में मेरे को नहीं उठाया, मेरे को कुछ भी नहीं उठाया, मेरे को ऐसे जेल में डाल दिया बांग्लादेशी बोल के। और उस जेल में मैं अकेला हूँ, कोई नहीं है। वो जेल था या डिटेंशन कैंप था? वो बोल रहा है, मैं सर को पूछा था उधर जेल वाले को, तो बोल रहा है ये सेंटर जेल था, तो कुछ दिन पहले बंद हो गया था। बंद होने के बाद फिर कुछ दिन पहले खुला है। तो एक आदमी नहीं है जेल में, मैं खाली अकेले था। अकेले थे पूरा हाँ, जेल? पूरा जेल में कितना अकेले बड़ा था। था वो जेल? बड़ा होगा यहाँ से, कितना बड़ा जो होटल है ना, इतना बड़ा होगा, अच्छा इतना ही बड़ा होगा जेल। अच्छा। तो उसके बाद आपको बीएसएफ के पास लेके आया? मेरे को यही बोला कहाँ का है तू? मैं बोला इंडिया का हूँ। तो बोल रहा है इंडिया का नहीं है, तुम झूठ बोलेगा, बांग्लादेश के आके इधर हिंदी भाषा सीख लिया तू। ऐसे गाली दे रहा हाँ, ऐसे तू भाषा सीख लिया। तो मैं बोला सर क्या बताऊंगा तुमको, जो बोल रहा हूँ वो मैं गलत सब बोल रहा हूँ ना। तो बोल रहा है सब तो गलत बात बोल रहा है, क्या सच बात बोल रहा है। तब मारने लगा मेरे को। कैसे मारा? मेरे को इधर पैर में सब में मारा है सर, इधर पूरा पैर मेरा, दोनों पैर मेरा काम ही नहीं कर रहा था। मेरे को इधर जेल में था, मैं इधर जेल में मेरे को रखा था, तो मैं 2 दिन भर के मैं हॉस्पिटल में भर्ती था, तब भी कुछ काम नहीं हुआ। बीएसएफ के इधर अब हॉस्पिटल में था? हाँ, हॉस्पिटल में भर्ती करके मेरा पाँव काम नहीं कर रहा था। तो बीएसएफ ने, आपने जो कहा बीएसएफ आपको बोला ये बोलने को, तो आपसे क्या बुलवाया था? मैं आपने कहा कि मेरे को बोला कि जो मैं कहूँगा आप बोलना। हाँ, वो सब बोलना पड़ेगा। तो क्या बुलवाया आपसे? मेरे को बोला कौन सा गांव में, मैं तो इतना मालूम नहीं है। बोला मैं वो बांग्लादेश से एक गांव का बारे में लिखा हुआ है, वो जो पुलिस लिखा है वो बोलना पड़ेगा तेरे को उस गांव का बारे में, और कौन सा थाना बताया वो थाना बोलना पड़ेगा बस। तो आपने बोला? हाँ, मैं बोला। जब बहुत मार रहा है तो क्या बताऊँ सर, बोल रहा है मार के नहीं तो गिरा दूंगा, इधर खड्डा करके इधर गाड़ दूंगा, ये सब बोल रहा है। तो जब बोल रहा था तब आपने कोई रिकॉर्ड किया था क्या? हाँ, रिकॉर्ड कर रहा था, एक छोटा वाला ही था, रिकॉर्ड कर रहा था। अच्छा। और मेरे को बोल रहा था ऐसे ऐसे। अच्छा, उसके बाद आपको बांग्लादेश भेज बांग्लादेश आपको भेजा क्या? बॉर्डर के माध्यम से गेट खोल के आपको अंदर भेजा? गेट खोल के अंदर भेजा। तो आप जब बांग्लादेश चले गए, आपको ये तारीख याद है कब था वो? इतना तो तारीख नहीं है ऐसे। अच्छा, फिर आप बांग्लादेश आपको भेज दिया। उधर पे फिर क्या हुआ? मेरे को बोल रहा है इधर भी लाइट जल रहा है, लाल लाइट, इधर भी लाल लाइट जल रहा है। तो मेरे को बोल रहा है इधर भी नहीं जाना है, उधर भी नहीं जाना है, एकदम सीधा रास्ता दिखा रहा हूँ, सीधा रास्ता पकड़ ले, नहीं तो इधर जाएगा तो गोली खाएगा, इधर जाएगा तो गोली खाएगा। कौन बोला ये? बेसिक। अच्छा। बोल रहा है इधर जाएगा तो गोली खा लेगा और उधर जाएगा तो गोली खाएगा। सीधा एकदम सीधा रास्ता दिखा रहा हूँ तेरे को, सीधा रास्ता पकड़ ले। दिन था या अंधेरा? रात को 1 बजे। रात को 1 बजे? हाँ, 1 बजे। अच्छा। तो आपको जब उस पार भेजा तब उस पार से कोई आया था आपको लेने के लिए, या फिर बीजीबी जो उनका पुलिस है? कोई नहीं आया था। मैं यहाँ से कितना 3 किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर गया तो एक देख रहा हूँ मैं, ऐसे ऊंचा मिट्टी है, तो वहाँ पे बीजेपी खड़ा हुआ है। बीजेपी? हाँ, बांग्लादेश का बीजेपी बोलता है, हम लोग बेसेफ बोलता है, तो हम बीजेपी हाँ बीजेपी। तो मैं उधर खड़ा है तो हमको तो पता नहीं है, मैं उस ऊपर को चढ़ा, मेरे को पकड़ लिया। पकड़ के बाद मेरे को एक रूम में रखा 1 दिन। रखने के बाद एड्रेस पूछा, तू कहाँ का है, बांग्लादेश का है ना, कहाँ का है। मैं बता दिया सर मैं इंडिया का हूँ, मेरे को ऐसे ऐसे बारे में भेज दिया मेरे को। तो बोल रहा है इंडिया का है? हाँ, इंडिया का हूँ मैं। तो उस टाइम मेरे नंबर याद नहीं था सर। तो एक आदमी मेरे को जाके छोड़ दिया, बांग्लादेश पे छोड़ दिया। मैं ऐसे जाके भूमरा बॉर्डर चल गया। कौन सा बॉर्डर? भूमरा बॉर्डर। अच्छा। तो लेकिन उधर के पुलिस आपको छोड़ दिया, जो बॉर्डर में था उनका बीजीबी, वो आपको छोड़ दिया था सर, वो छोड़ दिया था, कुछ नहीं हुआ। और आप जब बांग्लादेश के अंदर गए, आपके पास कोई कागज थे
बीएसएफ ने कोई कागज दिया था आपको? नहीं, कुछ कागज नहीं दिया था सर। कोई कागज नहीं? नहीं, कोई कागज आपके नहीं पास दिया था। कुछ कागज नहीं थे? नहीं, कुछ आप कागज ऐसे ही नहीं। कपड़े में थे? ऐसे कपड़े था, ऐसे मेरे था। ये कपड़े में आप कितने दिन हैं? नहीं, ये कपड़े में नहीं सर, मेरा कपड़ा है। एक आदमी दिया था उधर, तो मैं वो पहना था। और ये कल दिया है एक तो आदमी। जो आपको कपड़ा दिया या फिर जिनसे आप इस बात किए उन लोग को आप जानते थे? कोई जान पहचान का था या फिर? जान पहचान नहीं, जैसे होटल में काम कर रहा था उस में बेनाफुल बॉर्डर में, तो वो लोग की घर से आके दिया एक टी शर्ट। उधर पे आप होटल में काम किए? हाँ, तो खाने के लिए कहाँ खाऊंगा सर बताओ। 20 दिन रहा तो ऐसे काम कर रहा था। मेरे को बोला खाना पीना दूंगा, मैं बोला सर वही ठीक है, जो भी खाना मिलेगा वही पेट के लिए, नहीं तो मरना पड़ेगा, यहाँ कोई है ही नहीं है मेरा। इसलिए मैं काम कर रहा था, थाली उली धो रहा था सर। यही दिक्कत है। आप जब इधर से बांग्लादेश आपको ढकेल दिया, कुछ पैसे थे आपके पास? मेरा पास पैसा था, 10,000 रुपया पैसा था, और एक मोबाइल था, 22,000 का मोबाइल था, ले लिया वो। कौन? पुलिस वाले। कौन पुलिस? राजस्थान प्रताप नगर का वाले, प्रताप नगर थाना वाला। मोबाइल ले लिया? हाँ, मोबाइल और पैसा ले लिया मेरा। पैसा कहाँ पे था आपका? मेरा केस था तो जमा दिया था। मेरे को जब जेल में डाला तो बोला तुम जेल में जब छूटोगे तुम्हारा पैसा और तुम्हारा मोबाइल ऑफिस दे देंगे हम। तो जब मेरे को लेने आया पुलिस, प्रताप नगर थाना वाला, तो पैसा भी नहीं दिया, मोबाइल भी मेरे नहीं दिया। तो उसके बाद जब आप बांग्लादेश में थे, आप काम कर रहे थे होटल में, परिवार में किसी के साथ, बाबा चाचा किसी हाँ, के साथ? बात हुआ था। अच्छा। मैं उधर तुम्हारा इंडिया वाला जाता है ना, सब पेज मिर्चा और कुछ भी लेके गाड़ी लेके जाता है ना, तो वो लोग मेरे एक बार यहाँ से जाने से बाद ही मेरा मोबाइल नंबर कुछ नहीं याद था, तो वो मेरे को बात कराया घर से, वहाँ से कलकत्ता से एक आदमी था उसका बात कराया, कलिया चौक में फ़ोन लगाया मालदा में, मालदा से फ़ोन लगाने के बाद उसको, और भी एक मेरा जलालपुर का गांव है, जलालपुर पे फ़ोन लगाया, बोल रहा है ऐसे ऐसे आदमी है, इधर पकड़ा गया, इंडिया, उसका इंडिया का है, वहाँ का है रहने वाला, तो वो है वहाँ का, उसका घर जाकर पूछो तो ऐसे ऐसे नाम बारे में है, लड़का वो मैं रखा हूँ, तो जाकर पूछो, उसका गांव बता रहा है वो लड़का, तो जाकर पूछो। तो जाकर मेरे गांव घर लेके गया तो पता चल गया उसको। अभी आप वापस कैसे आए? कैसे? मेरे को वहाँ जेल दे दिया था कुछ दिन पहले। कैसे? वहाँ पे मेरे को जेल दे दिया था, उधर 4-5 दिन रहा होटल में, रहने के बाद मेरे को पकड़ लिया था बीजेपी। पकड़ने के बाद मेरे को इधर जेल में दे दिया। जेल में देने के बाद मेरे को अभी ये सब क्या कर रहा है गांव का हमको कुछ पता नहीं था, कुछ खाना भी अच्छा नहीं था जेल का, ऐसे पैर में मैं उधर हॉस्पिटल में 3-4 दिन भर्ती रहा। बांग्लादेश में भी? मेरा शरीर ठीक नहीं कर रहा था मेरा पूरा। ये लोग कह रहे हैं कि आप अपने मर्जी से बांग्लादेश चले गए थे, ये सच है? नहीं सर, बांग्लादेश मेरे को भेजा है, ज़बरदस्ती भेजा है। राजस्थान पुलिस वाले मेरे को बेशक का हाथ दिया था, बेशक हाथ के देने के बाद मेरे को बांग्लादेश ज़बरदस्ती मार के भेजा है। आप ऐसे जो हिंदी में मेरे से बात की है अभी, आपका हिंदी पूरा एकदम फ्लुएंट है, तो आप उस टाइम भी जब राजस्थान में थे, आपके हिंदी में बात कर रहे थे जब पुलिस आपको पकड़ा, या फिर आप बांग्ला में बात कर रहे थे? तो बांग्ला नहीं जानता है ना, हिंदी से बात कर रहे थे ना, तो हिंदी से बात कर रहे थे। वो बोल रहे हैं तो बांग्लादेश से आके तो हिंदी भाषा सीख लिया इधर। नहीं, जब आप जा रहे थे काम पे, आप कैसे पकड़ा आपको? आप काम पे जा रहे थे कि अचानक से आया? काम से जा रहे थे सर हम। कहाँ पे जा रहे थे? काम पे जा रहे थे? काम पे जा रहे थे। क्या काम में? छत का। छत का कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, मिस्त्री का काम? मिस्त्री का नहीं, लेबर का काम करते हैं। अच्छा, तो जब आप जा रहे थे उधर पे तो अचानक से पुलिस आ गया? अचानक पुलिस से नहीं, थाना से, रोड है ना, तो ये थाना है, ये रोड है। अच्छा, तो वो थाना में बाहर में खड़ा था पुलिस, और टेम्पू जानता है ये बंगाली है, बंगाल का है, बंगाली है, तो पकड़ लिया हम लोग को। तो आप बांग्ला में बात करते हैं इसीलिए शक हुआ आप बांग्लादेशी है? इसलिए शक हुआ। और वो लोग तो दारू पिया था पूरा। कौन, पुलिस? दारू पी के मेरे को मारा है बहुत। आपके पैर के ऊपर चढ़ गया? हाँ, बूट लगा के, तीनों बूट लगा के मारा है।
मेरा ये पैर काम ही नहीं कर रहा है सर, क्या बताऊँ। बहुत मारा है मेरे को, बहुत मारा। मैं बोल रहा था मेरा इधर मार कर भी फेल दोगे तब भी मैं बांग्लादेश का है ही नहीं हूँ, तो कहाँ से बताऊँ मैं। ज़बरदस्ती मेरे को बांग्लादेश ही भेजा है। उस कागज़ में जो आपका दस्तखत लिया, वो जो फिंगरप्रिंट लिया, तो आपने देखा उसमें क्या लिखा था? फिंगरप्रिंट में वो लोग ही क्या क्या कर रहा था, हम इतना तो पढ़ा लिखा है ही नहीं। आपने बोला नहीं आपके पास आधार कार्ड है? हम बताया तो बोल रहा है आधार कार्ड तो हम लोग भी जहाँ से भी हम लोग भी बना लेंगे, वो बता रहा है। आपके पास वोटर कार्ड है? वोटर कार्ड नहीं थे। अच्छा, आधार कार्ड है। हाँ आधार कार्ड है मेरा, जन्म सर्टिफिकेट है, अच्छा। पश्चिम बंगाल का जन्म सर्टिफिकेट है। जन्म सर्टिफिकेट तो ये है ना सर, देखो वोटर आईडी कार्ड से जन्म सर्टिफिकेट ये है। जन्म सर्टिफिकेट भी दिखाया तब भी नहीं माना। আর ফেরত যাবেন রাজস্থান কাজ করতে? सर देखें मजदूरी आदमी कहाँ जाना भी पड़ेगा, फिर भी वो सब ऐसा कर रहा है तो सही नहीं कर रहा है सर। 70 आदमी था सर, हिंदू भी था 30 आदमी, उसका भी डॉक्यूमेंट्स तू नहीं देखा। हिंदू जब बोला तू छोड़ दिया, मुसलमान आदमी जब बोला तू पकड़ के रख दिया। कुछ कहेंगे सरकार को? क्या कहूँगा, ये सब गलत कर रहे हैं सर, बहुत गलत कर रहे हैं। हम लोग मजदूरी आदमी है, कहाँ काम जाना पड़ेगा। मैं तो 7 साल से मैं बाहर से काम कर रहा हूँ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ मेरे। दिल्ली बोलो, गुजरात बोलो, बेंगलोर बोलो, बम्बई बोलो, सब घूम लिया मैं। इतना उम्र में मैं सब जगह में काम करके देख लिया मैं, कभी ऐसा नहीं हुआ मेरा। आज ऐसे हो गया, मेरा नसीब में था, ऐसा हो गया सर। डर लग रहा है? डर तो लग रही है सर। अभी क्यों डर लग रहा है? घर आ गए ना? घर तो नहीं, घर आ गया तो अभी तो डर नहीं लग रहा। उस टाइम जब जेल में था, वहाँ पे था, तब डर लग रहा था ना सर। उस टाइम था, डर लग रहा था। मेरे को मारा भी, पीटा भी बहुत, तो डर तो लगेगा। শেখ আমির। আমির শেখ। এটা আপনাদের বাড়ির দলিল? এটা আমাদের বাড়ি ধরে ব্রিটিশ আমলের আছে, বুঝতে পারছেন? 1941। হ্যাঁ 1941 এখানে লিখে আছে আপনার। আমি বলতে চাইছি শুনেন, কথা হচ্ছে যে আমরা গরিব মানুষ, এই ছেলের জন্য আমরা প্রায় 3 মাস থেকে আমরা মানে ভালো করে খাওয়ার দাওয়ার মানে করতে পারছি না বাড়িতে, কাজও করতে পারছে না। হ্যাঁ আমরা দিন খাটি দিন খাই, বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ তো এখন আমাদের এ দিন খাটি দিন খাই, গরিবের উপরে কেন অত অত্যাচার হচ্ছে আমাদের উপরে? আমরা ভিন রাজ্যে কাজে গেলে আমাদের বাঙালি বলে তাড়িয়ে দেওয়া হয়, ভিন রাজ্যে কাজে গেলে আমাদের বাংলাদেশে বলে বাংলাদেশে পুশ করে দেওয়া হচ্ছে। এটার আমরা বিচার চাই। আমাদের 1941 দলিল আছে। হ্যাঁ আমার বাবার দাদু স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন, তার বাড়ির ছেলেকে আপনারা বাংলাদেশে পুশ করে দিচ্ছেন। আপনারা বলছেন প্রমাণ চাই। এই যে দেখুন প্রমাণ, 1941 সালের দলিল। আমার ছেলেকে মারধর করেছে, অত টর্চার করেছে। এখন আমার ছেলে মানে কি কালান্ত হয়ে আছে। এরকমভাবে আমরা গরিব লোক হয়ে আমাদের উপরে অত অত্যাচার কেন করা হচ্ছে? আমরা বাংলা ভাষা বলি, তার জন্য আমাদেরকে কি বাংলা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে? আমরা কি ভারতের নাগরিক নই? হ্যাঁ আমরা তো ভারতের লোক, আমরা ভারতের নাগরিক আমরা। হ্যাঁ আমার ছেলের মোবাইল ছিল, সেই মোবাইলটাকে ছিনিয়ে নিয়েছে ওখানে। 10,000 টাকা ছিল, সেই ছিনিয়ে নিয়েছে ওখানে। আপনার কাছে কারোর পাসপোর্ট আছে? হ্যাঁ পাসপোর্ট আছে আপনার? পাসপোর্ট তো আমার বাবার, আমার মায়ের। মানে আপনার বাবার, আমার মায়ের, মানে ওর দাদু দিদার। দেখাবেন আমাকে একবার পাসপোর্টটা দেখাও। আচ্ছা এটা হচ্ছে পাসপোর্ট? জি এখানে ছবি আছে আপনার, আমার বাবার আমার মায়ের ছবি আছে এখানে। Look here. This family has got Indian passport. He, who has been termed as a Bangladeshi and pushed inside Bangladesh, his own family, his own grandfather and grandmother have Indian passports. He has a birth certificate. He has a school leaving certificate. He has Aadhaar card. His father has voter ID card, PAN card, Aadhaar card, everything. Yet he was branded as a Bangladeshi. And just not that, he was allegedly assaulted, physically assaulted. What is the point in having all these documents? If somebody wants to assault you on terms of language, on the terms of how he or she appears, whether he wears a lungi or not,
then do it. Why do you need a passport? Why do you need a voter ID card? Why do you even ask anyone to prove their citizenship? Because somebody having all legit documents which in a way confirm the citizenship, the Indian citizenship of somebody, had been absolutely dismissed by Rajasthan police allegedly, then by BSF allegedly, and then pushed inside Bangladesh, which is not allegedly. That is a fact. And the fact is he has come back. And now the fact is the new allegation which has come against him, that he willfully went inside Bangladesh as if he was on a, he was on an adventure tour, was having a stroll, thought of just walking inside Bangladesh, which is not the case. He has strongly denied all these allegations and put forth very serious questions before the government. What fault is mine? Is very humbly he is asking. What fault is his as an Indian citizen, that this Indian citizen has been reprimanded and punished in this manner? For now, he will be going back home, whether you like it or not. And he too would heal, probably with time, even as the scars would stay deep inside the heart. This is not just Amir's story. This is the story of what it means today to have your citizenship doubted, to be treated as a foreigner in your own land. Hundreds of Bengali migrants in BJP-ruled states have faced the unsolicited suspicion. When citizenship becomes a weapon, no one is safe. The mood in India is celebratory, celebrations of Independence Day. India promises freedom and dignity to every citizen. But for some, the fight begins with proving they belong here. Sheikh Amir is home, yet many still remain missing. Allegedly pushed across a border because of the language they speak, the way they look, the faith they follow. When citizenship itself becomes a question, the meaning of freedom is never complete. A country's borders can keep enemies out, but when they push their own people away, the wound is within. ধন্যবাদ দাদা আপনাদের। দেখা হবে, হ্যাঁ দেখা হবে, ঠিক আছে? Along with Ronnie Shatra, Orko Shaha and Titash Mukherjee in Kolkata, this is Tamal Shah, the News the Truth, NTT.